Yes, brothers and sisters, thank you for this opportunity. और भाई और बहनों, इस मौके के लिए धन्यवाद। I count it a great privilege to be with you all. मैं एक बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ कि मैं आप सबके साथ यहाँ आज इकट्ठा हो पाया। So, as I was sharing, if I remember correctly, that you have received the same faith, same kind of faith what I have received. और जैसे मुझे याद आता है, जैसे पिछले बार मैं बांट रहा था, क्योंकि आपने उसी प्रकार का विश्वास प्राप्त किया जो मैंने प्राप्त किया है। So, which has changed my life, and so it has changed your life as well. जिसने मेरे जीवन को बदला है और वैसे ही आपके जीवन को भी बदला है। And that has drawn to us to come together like this. और उसी वजह से उसने हमें एकत्रित खींचा है कि हम इस प्रकार से आ पाए। So that's why we all come together with same hunger and same thirst. और इसी वजह से हम एक ही प्रकार की भूख और एक ही प्रकार के प्यास के साथ एकत्रित होते हैं। And this hunger and thirst for what? और ये भूख और प्यास किस लिए है? That we come together and hear something and we meet together. Is that the reason? क्या वो भूख इसकी है कि हम आकर कुछ सुने या हम एकत्रित मिले, यही वो भूख और प्यास है क्या? Is our attraction to each other क्या एक दूसरे के प्रति वो आकर्षण है क्या, or something else? या कुछ और है? Yeah, I would like to read a verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। Matthew chapter 13, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, verse 44. उसका 44 वचन। You may have read this verse quite often. शायद आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा। Yeah, I would like to read verse 44, which says, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field." और 44 वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। So the important thing here is the treasure is hidden in the field. और मुख्य बात यहाँ ये है कि वो जो खजाना है वो एक खेत में छिपा हुआ है, Which a man found and hid again. और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर छिपा दिया। And then again, from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। So here the important thing is the treasure. और यहाँ मुख्य बात वो धन या वो खजाना है, And it is hidden in the field. और वो किसी खेत में छिपा हुआ है। And now the treasure is important, the field is important. अब वो खजाना भी महत्वपूर्ण है, वो खेत भी महत्वपूर्ण है। And he found it. और उसने उसे खोज लिया था, उसने उसे पा लिया था। And when he saw that, he realized it's a treasure. और एक बार उसने देख लिया तो वो समझ गया कि यहाँ ये एक खजाना है। And he understood the value of it. और वो उसके मूल्य को समझ गया। And then, so happy he was, joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. और वो उस पर इतना खुश होता है कि उसके पास जो कुछ है सब कुछ बेचकर वो इस खेत को खरीद लेता है। So that means that was a value. The value was somewhere around all that he had, equal to what he had. और उस खेत का मूल्य, जो कुछ उसके पास था, वो सब चीजों को मिलाकर उतना उस खेत का मूल्य था। So he was willing to sell and give away everything to buy this field. Not really the field, the treasure which was in the field. और वो सब कुछ बेचकर इस खेत को खरीदने के लिए तैयार था। और वो उसका आकर्षण ये नहीं था कि वो खेत खरीदना चाहता था, बल्कि उस खेत के अंदर का खजाना वो चाहता था। So everybody thought that he is buying a field, but I think most of the people didn't know there was a treasure in that field. और अधिकतर लोगों को यही लगा होगा कि ये व्यक्ति खेत खरीद रहा है, पर शायद ही किसी को मालूम होगा उस खेत के अंदर एक खजाना है। Verse 45. 45 वचन। Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And verse 46, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it.
45 और 46 वचन। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। So now I have to examine myself. अब मुझे अपने आप को जांचना है। So here what Jesus is speaking about treasure and a pearl. और यहाँ यीशु मसीह एक खजाने के बारे में और एक मोती के बारे में बात कर रहा है। And that person who goes with joy and sells everything he has, and even second person also, he sold everything he had and bought it. That is like me and you. वो पहला व्यक्ति जिसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और वो दूसरा व्यक्ति उसने भी जाकर सब कुछ बेच दिया, ये दोनों व्यक्ति आपके और मेरे जैसे हैं। So now, so we have to question ourselves: have we found this treasure in the field, and have we found this pearl? अब हमें अपने आप से प्रश्न करना है, क्या उस खेत में छिपे हुए खजाने को हम पा चुके हैं? क्या हम उस मोती को पा चुके हैं? So this is a very important question. We need to answer to the Lord. The Lord Jesus Christ is talking about these two parables. तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिसका उत्तर हमें प्रभु यीशु को देना है, क्योंकि प्रभु यीशु है जो इन दो दृष्टांतों को कह रहा था। And Jesus is saying something very important here. और यहाँ यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है। See, when I think about pearl, जब मैं किसी मोती के बारे में सोचता हूँ, and I think about another verse in Matthew chapter 7. मैं एक और वचन के बारे में सोचता हूँ जो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में है। So here verse 6 says something like this. और उसका 6वां वचन इस प्रकार से है, So do not give what is holy to the dogs, and do not throw your pearls before pigs, or they will trample them under their feet and turn and tear you to pieces. पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। So I was talking to answering some questions some time back, और कुछ समय पहले मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, and there somebody asked me, what about so and so in the office, so and so my relatives, I'm trying to help them to understand, but they're not understanding, something like that. और वहां कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था कि मेरे ऑफिस में एक फलाना व्यक्ति है, मेरे रिश्तेदारों में एक फलाना व्यक्ति है, मैं उन्हें कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे कुछ वो प्रश्न पूछ रहे थे। And I was telling that brother, be careful when you try to give something which is valuable to you, but you are trying to give it to the person, somebody whom you don't know. और मैं उस भाई से कह रहा था कि आपको बड़ा सतर्क और सावधान होना है कि कोई ऐसी चीज जो आप जानते हो बहुमूल्य है, वो आप किसी और व्यक्ति को दे रहे हो जिससे आप नहीं जानते। And the person may not know the value of it, and you are trying to give it. शायद वो सामने वाला व्यक्ति आप जो उसे दे रहे हो उस चीज का मूल्य को नहीं जानता, और फिर भी आप उसे देने की कोशिश कर रहे हो। And then I had to tell him, see that it is pig or a dog. और फिर मैंने उनसे कहा कि आप पहले इस बात को जांच लो कि सामने वाला व्यक्ति कुत्ता है या सुअर है। It is a little difficult to say like that, but that is what Jesus was saying. ये कहना मुश्किल है, पर यीशु मसीह बिल्कुल यही बात कह रहा था। Because they have a different value. See, pigs value something. It's a dirt. It values. क्योंकि उन लोगों का मूल्य अलग है। उदाहरण के तौर पर सुअरों के लिए कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान है? उनके लिए कीचड़ या मिट्टी का ज्यादा मूल्य है। Then you're trying to give pearls which you think it's valuable. और आप उन्हें मोती देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मोती ज्यादा बहुमूल्य है। That pig will not like it. It says, what is that you are trying to give which I don't like it? वो सुअर सोचेगा कि वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, वो सोचेगा कि ये व्यक्ति ये क्यों दे रहा है जो मुझे पसंद नहीं। So pig, if it has a voice to speak, it says, just don't give me all this waste things, and give me some keychain or some dirt which I can enjoy.
अगर सुअर बात कर सकते तो वो यही कहते कि ये सारे चीजों को, ये मोती जो है ये मेरे लिए कचरे के समान है, ये मुझे मत दो, इसके बजाय मुझे कीचड़ दो ताकि मैं उसमें जाके आनंद कर सकूं। That's why whether the good to uh, understand the person and his values, and accordingly we can help the person. और इसलिए अच्छा है कि हम उस व्यक्ति को और उसके मूल्यों को समझे, फिर उसके अनुसार हम उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। So, like that, here, this man who finds this treasure and a pearl and sells all that he has. बिल्कुल वैसे यहाँ ये व्यक्ति और वो दूसरा व्यापारी, वो अब जाकर एक खजाना खोद पाते हैं, एक मोती पाते हैं और फिर उनके पास जो कुछ है सब कुछ बेच देते हैं। And if just imagine he finds the pearl and he wants to buy that, and if he thinks that, oh, should I pay so much to this pearl? What he needs to do then? और फिर सोचकर देखिए, जब उस व्यक्ति को वो मोती मिल चुका है, फिर अगर वो सोचने लगे कि क्या मुझे वाकई इतना पैसा खर्च करके ये मोती खरीदना चाहिए क्या? अगर वो ऐसा सोचने लगे तो Then he has to go to the market, फिर उसे उस बाजार में जाना होगा and he may have some money in his hand, and और he must शायद give that money, और उसके हाथों में कुछ पैसा होगा, उसे वो पैसा देना होगा and then he has to buy something which looks like pearl and something which is cheap. और फिर उसे दूसरी कोई चीज खरीदनी होगी जो शायद एक मोती जैसे दिखती होगी और जो सस्ती होगी। I remember one brother shared something like this. मुझे याद है एक बार एक भाई ने कुछ इस प्रकार से बांटा था। Uh, it is many years back. Those days we used to use tape recorders. और ये बहुत वर्षों पहले उसने बांटा था, उन दिनों में हम टेप रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया करते थे। So he went to the market वो मार्केट में गए and he looked around for a Sony tape recorder. और उन्होंने उस बाजार में सोनी का टेप रिकॉर्डर वो ढूंढ रहे थे। And then he went to the authorized shop, and it was very expensive there. और फिर जिस दुकान में सोनी की वस्तुएं मिलती थी वहां वो गए और वहां बहुत ही ज्यादा महंगी वो वस्तु मिल रही थी। And then someone suggested you can go to a cheap market where you can buy something same, and you may get a good product. और फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप दूसरे एक बाजार में जाइए जहां आपको वही का वही टेप रिकॉर्डर पर बड़े सस्ते में मिले, शायद आपको कोई अच्छा वस्तु भी मिल जाए वहां। So then he went and checked and verified, और फिर जब वो दूसरे बाजार में जाकर उन्होंने जांच की and then he found something Sony tape recorder, और फिर उन्हें वहां भी एक सोनी का टेप रिकॉर्डर मिला and he bought it. और उन्होंने वो खरीद लिया It was almost like for the half price. और लगभग लगभग पहले दुकान के आधे कीमत में उन्हें वो टेप रिकॉर्डर मिला। And then this brother, I don't know, maybe about a week or 2 weeks later, और शायद एक दो हफ्ते बाद, and when he was playing, some issue was there in that. और जब वो टेप रिकॉर्डर पर कुछ लगा रहे थे तो वहां से कुछ तकलीफ हुई। Then he took that to authorized service center. और फिर वो जो अधिकृत सर्विस सेंटर है उस सर्विस सेंटर में उसको ले गए। And there, when he gave it, जब उन्होंने उस सर्विस सेंटर में उसे दिया they verified and said, this is a what is this? Which is not a good product, and which is not at all Sony product at all. The only covering is Sony. Inside everything is all local product. और वहां उन्होंने जांच पड़ताल करके बताया कि ये तो कोई नकली चीज है, बाहर से ये बिल्कुल सोने जैसा दिखता है पर ये यही स्थानीय कहीं बना हुआ और एक नकली बनावटी चीज है। So that is what Sony company people said. और ये सोनी के कंपनी के लोगों ने ये कहा। And then he said, why don't you service this and put a new genuine product parts inside that? और फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि फिर क्यों नहीं कि आप इसको सर्विस करके, इसको अच्छे से रिपेयर करके इसके अंदर जो असली चीज है, जो असली यंत्र है वही अंदर लगाइए। They said, no, we can't do that. We can't even touch, because the inside everything, we need to change the whole thing. Instead of that, you buy the new one. उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंदर की पूरी चीज हमें बदलनी पड़ेगी, इसके बजाय आप नए चीज को खरीद लीजिए। Then he brought it back. फिर वो वापस घर ले आया। So what I'm trying to say is, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं
See, here this person found a treasure and a pearl, and he sold everything. He wanted to pay the full price and buy that. यहाँ एक व्यक्ति को वो खजाना मिला, यहाँ उस व्यक्ति को वो मोती मिला, वो पूरी की पूरी कीमत चुकाकर, उसने सब कुछ बेचकर उस कीमत को चुकाकर वो खरीदना चाहता था। And Jesus is trying to say, you have a treasure, spiritual treasure, but the thing is, you need to sell everything what you have और to get it. यीशु कह रहा है कि तुम्हारे पास एक आत्मिक खजाना उपलब्ध है, पर आपको सब कुछ बेचना होगा उस खजाने को प्राप्त करने के लिए। See, that's the kingdom of heaven is. वही है स्वर्ग का राज्य। So to gain that kingdom of heaven, the pearl in the kingdom of God, treasure in the kingdom of God, you have to sell everything. उस स्वर्ग के राज्य के खजाने को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के राज्य के मोती को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ बेचना होगा। So many years I used to think, what is this full surrender, complete surrender, absolute surrender? I never understood that. और कई वर्षों तक मैं हमेशा सोचता था कि ये जो कहते हैं पूरी तरीके से समर्पण करना, संपूर्ण समर्पण करना, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं कभी उस चीज को समझा नहीं था। But why we have to give everything? Many young people feel like that. क्यों हमें अपना सब कुछ प्रभु को देना है? कई जवानों के मन में ऐसा संदेह होता है। So then I slowly started studying the scripture and also seeing the life of many godly ones. फिर मैं धीरे-धीरे जब बाइबल को पढ़ने लगा और उसी के साथ-साथ कई ईश्वरीय लोगों के जीवन को देखने लगा। There are people who do a complete surrender, absolute surrender, get something which others don't get. ऐसे लोग होते हैं जो अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण चीज दे देते हैं, पूरा समर्पण करते हैं, और ऐसे लोग ऐसा कुछ पाते हैं जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। And everybody thinks so, oh, they have a wonderful life, they have a anointed life, but the thing is, nobody will know what price they have paid. और फिर दूसरे सब लोग उनके जीवन को देखकर कहेंगे कि इनका क्या ही अद्भुत जीवन है, इनका क्या ही अभिषेक जीवन है, पर कोई भी ये नहीं जानता कि उन्होंने कैसी भारी कीमत चुकाई है। So for example, you go to buy a mobile in a shop, उदाहरण के तौर पर किसी दुकान में अगर आप मोबाइल खरीदने जाओ तो and you have to see how much money you have. आपको ये पहले देखना होगा कि आपके पास कितना पैसा है। So I remember going to buy a mobile shop many years back. That time I had a budget of 4,000 rupees. मुझे याद है कई वर्षों पहले जब मैं मोबाइल फोन खरीदने दुकान में गया था, मेरे पास 4000 का मैंने एक कीमत तय की थी कि इसके अंदर मैं खरीदूंगा। I told the person, just show me something for 4,000 rupees. और फिर मैंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे 4000 रुपए के अंदर होने वाला कोई मोबाइल फोन दिखाइए। He showed me something for 3,500. और 3500 का एक मोबाइल उन्होंने मुझे दिखाया। And then immediately once I said, oh, it looks okay to me. और जैसे ही मैंने कहा कि हाँ मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है, Then immediately he said, sir, see, this has certain features which may be difficult for you to use in a longer run, and better you use another mobile for 4,500, which will endure, means give you a longer durability. और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो चीजें हैं उसके वजह से शायद ये कुछ समय के लिए तो अच्छा चलेगा, उसके आगे आपको तकलीफ हो सकती है, इससे बेहतर आप 4500 की एक वस्तु खरीदिए जो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा। I didn't like because it was crossing my budget. और मुझे वो पसंद नहीं था क्योंकि मेरे तय किए हुए पैसे से उसकी ज्यादा कीमत थी। Then somehow I kind of, okay, let me think. और फिर मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। Within a minute, he changed his subject and he brought another mobile and said, sir, this also have some drawbacks. Why don't you buy another one, which is about 5,000 rupees? और एक ही सेकंड के अंदर उसने तुरंत विषय को बदला, एक दूसरा फोन निकाला और उसने कहा कि देखो ये 4500 के इसमें भी कुछ तकलीफ समस्याएं हैं, क्यों ना आप 5000 की वस्तु खरीदे। So within 5 minutes, it has gone to 6,000 rupees. और 5 मिनट में वो 6000 रुपए की वस्तु दिखाने लगा। And then I said, I am not comfortable. I walked out. और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा, और मैं वहां से चले गया। What I understood that day was, उस दिन मैं इस बात को समझ गया, so as they say, no, as you sow, so shall you reap.
So as the price, so the product is. और जैसे कहा जाता है कि जो बोगे वही काटोगे, वैसे ही जो कीमत चुकाओगे वही आपको उसी गुणवत्ता का वो चीज मिलेगा। Then what? See, I came across some mobile phones just so expensive. I see, what is this so expensive? और फिर मैंने कुछ ऐसे मोबाइल फोन देखे जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और मैं सोचता हूँ कि इतना कैसा कोई महंगा हो सकता है। They say that that is very good and it has so many features and durability and so many things. और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और इसकी बहुत विशेषताएं हैं और ये बहुत लंबा चलेगा। So in Christian life also like that. और हमारे मसीही जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। See, that's what Paul was afraid, he says. इसी बात का भय था पौलुस को, ऐसा पौलुस कहता है। So I think 2 Corinthians 11, he said like this. और दूसरे कुरिन्थ उसके 11वें अध्याय में पौलुस ने यही बात कही। I'm afraid that you go and get some another Jesus. और वो कहता है कि मुझे भय है कहीं तुम कोई और यीशु के पीछे ना चले जाओ। So the another Jesus, what is it? Another Jesus ये अन्य यीशु या ये और ही यीशु ये कौन है? looks like Jesus. दिखता यीशु जैसा है, It has Bible, prayer, church, everything. उसके अंदर बाइबल है, प्रार्थना है, कलीसिया है, सब कुछ है। But because the price is not paid, और क्योंकि उसके लिए कीमत नहीं चुकाई गई, price of repentance, मन फिराव की कीमत, price of restitution, जो चीजें गलत तरीके से ली गई है उनको लौटाने की कीमत, price of being a disciple, एक शिष्य होने की कीमत, price of not loving the world, इस संसार से प्रेम न करने की कीमत, price of not denying self. अपने आप का इनकार न करने की कीमत, There are so many prices. और ऐसे कई कीमत है। This Jesus says, no, I don't want all these things. और ये जो अन्य यीशु है ये कहता है नहीं नहीं मैं ये सारी चीजें नहीं चाहता। And they think that, oh, this good Jesus, nice Jesus, infant Jesus, and so many other Jesus, and they just go for it. और फिर वो कहते हैं नहीं ये कितना अच्छा यीशु है, भला यीशु है, बाल यीशु है, और ऐसे कई अलग अलग नाम देके वो उसी के साथ बह जाते हैं, वही चीज को अपना लेते हैं। Brother, were you able to hear what I said? Yes, I was able to hear that. Is there a problem with my connection? No, just in between, but now we can hear you again. Yeah. Thank you very much. See, this is what my burden, brothers and sisters. और यही मेरा बोझ है मेरे भाई और बहनों। See, the thing is, when I look at a brother or a sister having a wonderful life of joy and peace, I must understand what price they are paid. जब मैं किसी भाई या बहन को देखता हूँ कि उनके पास एक अद्भुत जीवन है, आनंद और शांति से भरा, तब मुझे समझना चाहिए कि उन्होंने क्या ही कीमत चुकाई होगी। You must try to understand what price they paid. हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। See, it is like if you find a wonderful mobile phone with someone, you immediately ask him, what is the price for this? उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हो कि किसी व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन है, आप तुरंत पूछते हो कि आपने ये कितने में खरीदा। Sometimes you will be shocked to hear the price. और कभी-कभी उस कीमत को सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाते हो। Exactly like that, Christian life also. बिल्कुल वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी है। That is what Jesus is trying to say here. यही यीशु मसीह यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। Is this a treasure to you, a क्या Christian life? क्या ये मसीही जीवन आपके लिए खजाने के समान है क्या? Then you have to go and sell everything. फिर आपको सब कुछ जाकर बेचना होगा। And that man really went so happy and sold everything और वो व्यक्ति वाकई बहुत ज्यादा खुश होकर सब कुछ उसने बेच दिया, because he realized the value of it. क्योंकि उस बात के मूल्य को वो समझ गया। But somebody who has not realized the value of it, और कोई व्यक्ति जो उसके मूल्य को वाकई नहीं समझा है, why do I pay such a price? वो सोचेगा कि क्यों मैं ऐसी कीमत चुकाऊं। But at the same time, the one who paid the price, पर उसी समय जिस व्यक्ति ने खुद कीमत चुकाई, and then he will enjoy. और वो उसके आनंद को उठाएगा। And like Jesus said, I think Matthew 6, seek first his kingdom of God and righteousness, his kingdom and his righteousness, and all that you need will be provided to you.
जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएंगी। Many people think that, oh, now why God is not meeting my need, and oh, why I'm struggling, and so many things like that. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी जरूरत क्यों ना नहीं पूरी कर रहा, क्यों मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। And many things I can't find answer. कई चीजें हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। But this other brother or other sister, they seem to have such a wonderful life. Everything is met. In fact, they are going after other people to help. पर ये दूसरा भाई, दूसरी बहन, उनके जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, उनके पास बहुत है, यहाँ तक कि वे दूसरों की जाकर सहायता कर सकते हैं। So they are encouraging others. They are building others. वे दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरों की उन्नति कराते हैं। They don't seem to have worries and cares of the world. और ऐसा लगता है कि इस संसार के ना ही उन्हें चिंताएं हैं, ना ही कोई परेशानियां हैं। What is this they have? उनके पास ऐसा क्या है? One thing I'll tell you, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, they have a heavenly father. उनका एक स्वर्गीय पिता है। They found a heavenly father. उन्होंने एक स्वर्गीय पिता को पा लिया है। And a heavenly father is almighty and he is King of kings. और उनका स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान है और वो राजाओं का राजा है। But if you go and ask them, how did you find? और अगर आप उनसे जाकर पूछो कि आपको ये स्वर्गीय पिता कैसे मिला, And they have paid the price. फिर वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कीमत चुकाई है। And you slowly realize if you spend time with them, और अगर आप उनके साथ समय बिताओ तो धीरे धीरे आप इस बात को समझ पाओगे। and you slowly realize और फिर आपको ये समझ में आएगा that it's worth paying that price. कि उस कीमत को चुकाना बिल्कुल योग्य है। See, that is what Paul is trying to say. यही बात पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। Philippians chapter 3, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, verse 7, you can read, brother. उसका 7वां वचन, फिलिपियो 3:7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। So here, maybe I'm trying to read from Living Bible, but all these things that once I thought very worthwhile, now I have thrown them all away so that I can put my trust and hope in Christ alone. और लिविंग बाइबल एक भावानुवाद कहता है कि वो सारी चीजें जो मुझे कीमती लगती थी, महान लगती थी, उन सब चीजों को मैं त्यागने और छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूं कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। See here, to gain something, he had to throw away something. और यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए उसे दूसरी कोई चीज थी जो फेंक देनी पड़ी या खोनी पड़ी। That man, no, he found a treasure. To gain the treasure, he gave away all the money he had. उस व्यक्ति ने उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जो भी पैसा उसके पास था वो पूरा का पूरा पैसा उसने दे दिया। So he realized that this money, if I keep it, that money value keeps coming down. उसने ये समझ लिया था, ये जो पैसा मेरे पास है, अगर मेरे पास ही मैं उसे रखे रखूं तो उसका मूल्य धीरे धीरे कम हो जाएगा। But if I buy this pearl पर उसके जगह अगर मैं ये मोती खरीद लूं तो, or this treasure, या इस खजाने को खरीद लूं तो this value of that will multiply like anything. उसका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। Verse 8 says, yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Jesus Christ, my Lord. I have put aside all else, counting it worth less than nothing, in order that I can have Christ. 8वां वचन कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। See, he is considering all the other things as worthless and or rubbish. सारे अन्य चीजों को वो बिल्कुल भी किसी भी मूल्य का नहीं या कूड़ा समझता है। See, whatever he was giving away, he was considering that as rubbish. जिस भी चीज को वो त्याग रहा था वो सोचता है कि ये बिल्कुल कूड़े के समान है। See, he is giving away rubbish to gain the treasure of heaven, that is Christ. वो कूड़े को देता है ताकि वो स्वर्ग के खजाने को अर्थात यीशु मसीह को प्राप्त कर सके। But now, why we are collecting rubbish and we are so hesitant to give away the rubbish?
अब ऐसा क्यों है कि हम बहुत ही आतुर हैं कूड़े को इकट्ठा करने के लिए और उस कूड़े को त्यागने के लिए हम तैयार नहीं होते। World, self, and riches of the world, and so many things like that. ये There are स- so many things which we hold on to. ये संसार हमारा स्वयं, इस संसार के धन, ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम जकड़े और पकड़े रहते हैं। But have we found this treasure in Christ? पर क्या हमने मसीह में इस खजाने को प्राप्त किया है क्या? That the life of Christ? उस मसीह के जीवन को प्राप्त किया है क्या? And somebody have found a life of Christ as such a great thing, so they are ready to give away sin and self and all this world. और किसी और व्यक्ति ने मसीह के जीवन को प्राप्त किया और वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो अपने आप को, पाप को और इस संसार को सब चीज त्यागने के लिए तैयार है। Verse 10 says, now I have given up everything else. I have found it to be the only way to really know Christ and to experience the mighty power that brought him back to life again, and to find out what it means to suffer and to die with him. ब्रदर व्हिच वर्स? Verse 10 you can read, brother. 10वां वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So, see, what is that resurrection power? वो पुनरुत्थान की सामर्थ का क्या मतलब है? You are tempted in the situations and you are finding very difficult, and some sin is oppressing, somebody is persecuting, whatever it is, you can overcome that situation by resurrection power. अलग अलग परिस्थितियों में जब आप परखे जाते हो, जब आप प्रलोभित हो रहे हो, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, जब पाप आपको खींच रहा है और लोग आपको सता रहे हैं, उस समय वो मृत्युंजय की सामर्थ है जो आपको विजयी होने में सहायता कर सकती है। And also he found something else, that my Jesus suffered in this earth. This earth is an enemy land. My Jesus suffered. Like that, I am also ready to suffer, and I count suffering as a gain. उसी के साथ-साथ वो पौलुस एक और बात को समझ गया कि इस संसार में मेरे प्रभु को अगर पीड़ा हुई और उसने दुःख उठाया, इसका मतलब ये पृथ्वी मेरी शत्रु है, मेरे लिए वो शत्रु जैसे है और मेरे प्रभु की तरह मुझे भी उस पीड़ा को सहना होगा और उस पीड़ा को मैं एक लाभ की तरह देखने लगा हूँ। Yeah, this is what he found. Paul found. That's why such a wonderful life he lived. यही पौलुस ने पाया और इसी वजह से इतना अद्भुत जीवन वो जी पाया। Yeah, I would like to read another verse, Mark 10, एक और वचन मैं पढ़ूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, verse 28. उसका 28 वचन, 28 to 31 you can read. 28 से लेकर 31 वचन, मरकुस 10 28 से 31। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। Yeah, this is what happens in the kingdom of God. यही परमेश्वर के राज्य में होता है। See, the one who has, see, that's what Peter is saying. We have left everything to follow you. और यही पतरस कहता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है तेरे पीछे हो लेने के लिए। Jesus said, don't worry, you will get 100 times. और यीशु ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 100 गुना और प्रतिफल मिलेगा। Everything, I'm going to pay for it. सब कुछ जो तुमने त्याग दिया है मैं उसे उसकी भरपाई करूंगा। And what you have given up is rubbish. जो तुमने दे दिया वो कूड़ा था, What you gain is treasure. प्राप्त कर रहे हो वो खजाना है। But have we seen it like that? तो क्या हमने उसको इस प्रकार से देखा है? May the Lord help us to see that. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को स्पष्टता से देख पाए। Maybe I have many verses, but I don't have time to read it. और मेरे पास और कई वचन है पर मेरे पास समय नहीं है वो सब पढ़ने के लिए। So may the Lord help us to dwell in these things and realize the treasure which is in Christ. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों में बने रहे और उस खजाने को प्राप्त करें जो मसीह यीशु में है। Only when we see and realize the treasure,
केवल जब हम उस खजाने को देखते हैं और उसके मूल्य को समझ जाते हैं, and all that thing which we think as treasure looks as rubbish. उसी के बाद वो सारी चीजें जिनको अब हम खजाना समझ रहे हैं, वे हमें कूड़े की तरह दिखाई पड़ेंगी। And it becomes easy to give away those things. और उन चीजों को छोड़ देना, उन चीजों को त्याग देना बहुत आसान हो जाएगा। If someone goes to Paul and says, Paul, what is this? You had honor and reputation, and you had, what is that? You could have become a big man in this world. और अगर कोई व्यक्ति पौलुस के पास जाकर कहे कि पौलुस, तुम्हारे पास आदर था, तुम्हारे पास कीर्ति थी, तुम इस संसार के एक बड़े व्यक्ति बन सकते थे, But Paul says, oh, it's waste. I've given away the waste, but what I found is Christ. और पौलुस कहेगा कि नहीं, मैंने जो कूड़ा था उसे दे दिया, पर उसके बजाय मुझे जो मिल गया, मुझे जो प्राप्त हुआ, वो मसीह है। And you may not realize the treasure of it, but one day you'll all realize how greater the treasure that is. और शायद आज उस खजाने के मूल्य को तुम नहीं समझ पाते, पर एक दिन तुम सबको पता चलेगा कि उस खजाने का क्या ही बड़ा मूल्य था। May the Lord help us to realize the real treasures of life. प्रभु हमारी सहायता करे कि जीवन के सच्चे खजानों को हम देख पाए, समझ पाए। And may the Lord help us to give away all the rubbish. और उसी के साथ प्रभु हमारी सहायता करे कि बाकी अन्य कूड़े को हम अपने जीवन से निकाल पाए, And we start gaining more and more of Christ in us. और हम अपने अंदर मसीह को और ज्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त करने लगे। We can live that wonderful life which Jesus lived, Paul lived, Peter lived. और फिर हम वो अद्भुत जीवन जी पाएंगे जो यीशु ने जिया, पौलुस ने जिया और पतरस ने जिया। May the Lord help us. प्रभु हम सबकी सहायता करे। Amen. आमीन।